Hello, student. Hello, sir. Uh, which chapter should I start today? Last time हमने I think 7 is completed ना? Yes, sir. Okay. So which is the chapter to be started? Second? हमने फर्स्ट फिनिश कर दिया था. Very good. Huh? Hello. Open the chapter number second. Hello everyone. आ रही मेरी Yes, sir. आवाज? आ रही मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Open the chapter number second. Write the heading work and energy. Right there, work and energy. Return. Yes, sir. Okay. Now, so this concept work or energies are well known to you, na? By the way, have you done any work today? To whom should I ask? Have you done any work? Vaishnavi, have you done some work today? No, sir. No, sir. Shubham, have you done any work? अश्विनी, आज आपने कोई काम किया है? अश्विनी, आज आपने कोई काम किया है क्या? अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. बोलो कुछ तो. चलो चलो. So have you done homework today? चलो यहाँ पे ही देखो, अभी आप नहीं बोल रहे.
So this girl is sitting at one place and doing her homework. In the second example, a boy is playing, you can see, with a ball. In third example, a girl is watching cartoon on the television and the laborer is carrying a load. What do you think? Whom have done the work? Tell me. अरे आ रही मेरी आवाज, कुछ तो बोलो। अश्विनी, Yes, वैष्णवी, sir. यहाँ पे Yes, sir. इन लोगों ने, बाय द वे, चलो मैं ही बोलता, आप नहीं बोल रहे तो। यहाँ पे ये दोनों जो लड़कियां है ना, दे हैवंट डन एनी वर्क, वेयर एज दिस बॉय एंड हियर इज द लेबरर, दे हैव डन द वर्क. So why sitting at one place and doing something is not the work according to science? For example, you are sitting on the bank counter and operating the computer, or you are supposed a chartered accountant and doing some calculations sitting in one place. According to science, it is not the work. Okay? But suppose you are walking on the roads, you are playing a football, you are playing a cricket, it is the work. इसका मतलब as per science, when the applied force causes the displacement of the object, the work is said to be done. क्या बोला मैंने? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हो और उसकी वजह से यदि वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एट दैट टाइम वी से दैट द वर्क इज डन. गॉट इट? क्लियर? अरे इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे दोनों लड़कियां, दे आर सिटिंग एट वन प्लेस, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, so work is not done. Whereas the boy is playing with the ball, so there is displacement. The laborer is carrying a load, there is displacement. So work is said to be done when there is displacement on account of force. Force की वजह से यही किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी हम बोलेंगे the work is done. ठीक है? So यहाँ पे एक work is said to be done when the force applied on the object causes the displacement of the object. Work के लिए फॉर्मूला देखो, work is equal to force into displacement. देखो यहाँ पे, work is equal to force into displacement. work के लिए लेटर है W, force के लिए कैपिटल F और displacement के लिए स्मॉल s. So this is the definition and formula for the work done. Take the screenshot. Taken? Yes, sir. Yes, sir. Now यहाँ पे एक ध्यान दो, ये when we derived this formula, the force and displacement are in the same direction. ध्यान में रखो, यहाँ पे force and displacement are in the same direction. जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तभी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, अदरवाइज नो. ठीक है? यहाँ पे देखो, अभी Yes, sir. यहाँ पे देखो, this particular man is pushing this particular, what you call this, a small car बोलते हैं, एक्चुअली लगेज कार है ना, है ना? यहाँ पे Yes, देखो, sir. the force is exerted in this direction. See this, check my arrow. The force is exerted along this direction, whereas the displacement of the car is in the horizontal direction na. So force or displacement, are they in the same direction? Are in the No, first sir. no, so they make an angle theta. ये दोनों ये है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम dB लेटर यूज करते हैं और S भी यूज करते हैं. आपके बुक में S किया है, ध्यान में रखो. ये डायग्राम में D दिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. D का मतलब होता है यहाँ पे S ही होता है. हाँ, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल थीटा. सो अभी आपको क्या करना है, देखो, हाउ टू फाइंड द वर्क. W इज इक्वल टू F इंटू डी. डी का मतलब ऐसा,
और ये जो एंगल है ना उसका कॉस रेशो लेना है. डू यू नो अबाउट द कॉस, साइन, टैन? मालूम है कुछ? अरे साइन, कॉस, टैन आपको कुछ गए है क्या? कभी सुना है आपने कॉस के बारे में? आदित्य. Sir, I have listened, but I don't know the meaning of that. हाँ, बट हैव यू एवर हर्ड दिस कॉस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, सुना है इसका मतलब. हाँ, तो ये होता है कॉस. अभी कॉस क्या होती है थोड़ा बोलता हूँ मैं यहाँ पे. कॉस क्या है, कॉस के बारे में बोलूंगा और बाकी किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट इज द मैथ्स में आपको आएगा. ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इज इट? Yes. हाँ. Right. नाउ दिस इज द एंगल थीटा. ये एंगल थीटा का मतलब होता है सम एंगल. इट इज शोन बाय लेटर थीटा. एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द लेटर थीटा. हाँ, थीटा ये लेटर है, ऐसे ऐसे निकलते हैं. दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा. ये इसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा. अभी आपको ये एंगल मेजर करना है. सपोज ये आपको यदि मेजर करना है ना, तो आप क्या करेंगे? आई कैन टेक cos theta is equal to adjacent size upon hypotenuse. देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आपको शायद मैथ्स में आएगा. cos थीटा का मतलब होता है AC, ये बन गई एडजेसेंट साइड टू दिस एंगल. एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है AC, और BC है हाइपोटेन्यूज. BC क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना. सो एडजेसेंट साइड अपॉन, यदि हमने ये हाइपोटेन्यूज ले लिया ना, तो हमें मिलता है cos थीटा. ये cos थीटा मिलता है. इतना ही ध्यान में रखो, क्योंकि ये बिग टॉपिक है. आपको ये मैथ, साइन क्या होता है, cos क्या होता है, tan क्या होता है, दिस इज द टॉपिक ऑफ मैथ्स. यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं. इतना ही ध्यान में रखो. यदि cos थीटा का मतलब होता है ये जो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लेते तो बन जाता है cos थीटा. इतना ध्यान में रखो. हाँ, तो पहले केस में. अभी दूसरे केस में देखो यहाँ पे, दूसरे केस में द बॉय इज स्टैंडिंग और द मैन इज स्टैंडिंग बाय होल्डिंग द सूटकेस. सो ही इज जस्ट स्टैंडिंग, सो नो डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है. यहाँ पे देखो, द बॉय इज he hold a suitcase and running or traveling along the straight road. So the exerted force and the direction of displacement, they make an angle of 90 degree. Yes or no? Yes, sir. अभी देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है. ये वैल्यूज आपको दिए जाएंगे. cos 90, ये यहाँ पे थीटा है 90 और cos 90 का वैल्यू 0. सो इस केस में भी कुछ वर्क नहीं हो रहा है. सो यदि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है ना, तो वर्क होता है. लेकिन वो एंगल यदि 90 का है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सो वर्क नहीं होता. और यदि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है तो भी वर्क नहीं हो रहा है. ध्यान में रखिए. सो यहाँ पे एक डेरिवेशन अभी आपको आएगा. क्या लिखा मैंने? Formula for work done when the force and displacement are in different direction. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. इसके लिए आपके बुक में ये डायग्राम है. देखो ये डायग्राम. हाँ, सो हियर इज द वुडन ब्लॉक. यू कैन कंसिडर दिस एज वुडन ब्लॉक एंड ए फोर्स इज एक्सर्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया. This force causes the displacement. यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट आता है. सो द डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं ये s इतना डिस्प्लेसमेंट है. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक एन एंगल थीटा ना. यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir.
यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैव सम एंगल. सो हाउ टू फाइंड द वर्क डन. नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल फोर्स exerted but the block is moving in the horizontal direction, so part of this force, let it be F1, is acting along the direction. ना क्या बोला मैंने, आपने ये आपके डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. आपके पापा ने आपको एक छोटी कार लाके दी थी, बराबर है ना. वो कार को आप एक थ्रेड बांधते हो, यहाँ से एक धागा बांधते हो, और इन दिस डायरेक्शंस आप कार को फोर्स, कार के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. लेकिन कार तो फ्लोर के ऊपर ही मूव होती है ना. Yes, sir. आपकी छोटी कार है जो आपको पापा ने लाके दी है. आपने कार को ये थ्रेड बांध दिया, यहाँ से ये थ्रेड है, और आप उसको कार को खींच रहे. लेकिन कार तो ऊपर नहीं आती, कार तो फ्लोर पे ही स्लाइड करती है ना, जाती है, ट्रेवल करती है. तो इसका मतलब ये जो फोर्स आपने एक्चुअल लगाए ना, उसका कुछ पार्ट एक कार के ऊपर काम कर रहा है. वो जो काम कर रहा है ना, उसके बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स F, विच इज F1. ये पूरा फोर्स ये कार के ऊपर, ये ब्लॉक के ऊपर नहीं एक्ट हो रहा है. ये पार्ट का, ये फोर्स का कुछ ही पार्ट, जिसे बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स F, उसको नाम दिया मैंने F1. इट एक्ट्स ऑन द वुडन ब्लॉक. एंड ये तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहेगा. द फोर्स एक्टिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू F1S. S इज द डिस्प्लेसमेंट एंड F1 इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बराबर है ना. Yes, sir. इज इट क्लियर? ये क्लियर है? Yes, sir. ओके. अभी F1 तो हमने एक्चुअल फोर्स नहीं लगाया, तो F1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हाउ टू फाइंड F1 इन दिस. ये ट्रायंगल कंप्लीट करो. ये हो गया F1, ये हो गया F. सो हाउ टू फाइंड F1, इसलिए मैंने कॉस लूंगा. कॉस थीटा का फॉर्मूला था, अभी मैंने बोला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. सो कॉस थीटा, बेस कितना है, इट इज F1. हाइपोटेन्यूज कितना है, F. सो हमें अभी ये F इस साइड में ट्रांसफर करो, तो क्या होता है, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा. इसी तरह से हमने F1 का वैल्यू मिला है, इट इज F1 इज इक्वल टू F cos थीटा. बराबर है ना. ये बराबर है क्या? यहाँ पे cos थीटा था F1 अपॉन, देखो यहाँ पे cos थीटा था F1 अपॉन F. सो F1 मैंने एक साइड में रख दिया, तो ये F इस साइड में ट्रांसफर हो गया ना. Yes, sir. रूल ऑफ मैथ्स, ये F इस साइड में ट्रांसफर हो गया. सो F1 बन गया F cos थीटा. अभी ये जो फॉर्मूला था जो आपने डिराइव किया था, ये यहाँ पे W इज इक्वल टू F1, तो F1 की वैल्यू डालो यहाँ पे. F1 की वैल्यू क्या है, F cos थीटा. सो W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S. अभी F और S को एक साथ लिखो, सो Fs cos थीटा. इसका मतलब यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमें एंगल कंसिडर करना होता है टू फाइंड द वर्क डन. इतना ही ध्यान में रखो. इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो यू हैव टू कंसिडर द एंगल W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. टेक द स्क्रीनशॉट. ये स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट. Taken, sir. हो गया. Yes. ये भी लीजिए, हो गया. Yes, sir. तो अभी ध्यान दो, यहाँ पे यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Fs. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो W के वर्क के लिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. थीटा ये दोनों का एंगल रहेगा. अभी चलो थोड़ा आपके बुक में है, ये देखो आपका बुक का सेकंड पेज देखो, चैप्टर का सेकंड पेज.
यहाँ पे W इज थीटा, यदि एंगल 0 का है तो cos 0 का वैल्यू आपको 1 दिया है। ये एंगल आप ऑलरेडी एंगल दिए, देखो थीटा है 0, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई भी डायरेक्ट, इसमें कोई भी एंगल नहीं है। सो इज इट नॉट, डज इट नॉट मीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन? देखो यहाँ पे यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो अश्विनी यहाँ पे देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? अश्विनी बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? अरे 0 डिग्री। हाँ एंगल 0 है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना तो एंगल 0 है इसमें। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 है। तो देखो फॉर्मूला देखो, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। cos 0 की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो मुझे मिला W इज इक्वल टू एफ एस मिल गया। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है? कंक्लूजन यहाँ पे होता है द वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पे कंक्लूजन लिखो, द वर्क डन इज पॉजिटिव। कंक्लूजन है वर्क डन इज पॉजिटिव। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है ना देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। अभी देखो, अभी थीटा 90 है, cos 90 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखो एफ एस cos 90 0। देखो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 का वैल्यू 0 है। सो एफ एस इंटू 0 कितना आएगा रे? W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0 कितना आएगा यहाँ पे? अरे एफ एस इंटू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना वैल्यू होता है? हेलो एवरीवन, अरे समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, व्हाट इज द वैल्यू? 0। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0, सो हो गया 0 W। इसका मतलब यदि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, यहाँ पे मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 का है। सो नो वर्क इज डन एट दैट टाइम, द वर्क डन इज 0। यहाँ पे लिखो 0 वर्क डन, देखो यहाँ पे वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0। हाँ हो गया, वर्क डन इज 0 हो गया क्या? Yes, sir. Yes. नाउ देखो द एंगल इज 180 एंगल कब होगा रे? 180 एंगल कब रहेगा? ये देखो यहाँ पे फोर्स है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने कोई भी बॉल ऊपर फेंका तो बॉल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर है ना? और फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, बराबर है क्या यहाँ पे? सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे मेक एन, ये एंगल पूरा कितना हो गया? द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच इट इज? 180 एंगल हो गया 180। cos 180 की कीमत -1 है। सो यहाँ पे लिखो W इज इक्वल टू एफ cos 180। लेकिन cos 180 की वैल्यू कितनी है? cos 180 की वैल्यू कितनी है? अरे cos 180 यहाँ पे, ये जो 80 है ना 180 यहाँ पे लिखो cos 180, लेकिन cos 180 की वैल्यू -1 है ना, तो ये हो गया W इज इक्वल टू माइनस एफ एस हो गया। दिस इज कॉल्ड 0 वर्क डन, सॉरी निगेटिव वर्क डन, लिखो निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन हो गया। Yes, sir. Yes, तो ध्यान sir. में रखिए यहाँ पे work done is positive when the force and displacement are in the same direction. Give me the example of positive work.
When the force and displacement are in the same direction, the work done is positive. Give me the example of positive work. यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पुशिंग समथिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय बस एंड योर बस फेल्स, आपकी बस बंद पड़ गई है. सो यू विल गिव द जर्क टू द बस फ्रॉम द बैक साइड ना. आप बैक साइड से आपके बस को धक्का दे रहे हो, बस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो आपने Yes. काम किया, पॉजिटिव वर्ड रन. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Give the example of negative work done. Lifting someone vertically upward. आप कुछ ऊपर उठा रहे हो, सो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया, फोर्स डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है और आप किसी को ऊपर उठा रहे हो, तो ये हो गया निगेटिव वर्क डन. और जीरो वर्क डन का एग्जांपल दो. अरे zero work done sitting at one place. Now the work done by you is zero because you are sitting at one place. Okay. और भी एक केस में वर्क डन जीरो होता है, when the force and displacement are perpendicular. जीरो वर्क दो केस में होता है. नंबर एक केस है नो डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड केस है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी वर्क डन जीरो ही होता है. टेक दिस स्क्रीनशॉट. Sir, taken. हो गया? Yes, sir. सर हाँ. सर वो कॉलम का भी स्क्रीनशॉट लेने का है? नहीं, वो आपको लिखना था बुक में. यहाँ पे देखो, अभी फिर से देखो एक बार. When the force and displacement are in the same direction, the work done is positive. When force and displacement are in the same direction, work done is positive. उसी टाइम में एंगल जीरो होता है. When the force and displacement are opposite direction, theta 180 होता है, the work done is negative. And when the force does not cause any displacement, force की वजह से displacement नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90 का बन रहा है, तो इसी टाइम भी वर्क डन इज जीरो ही होता है. ठीक है? टेक दिस स्क्रीनशॉट. हो Taken, गया? sir. Taken, हो गया? sir. Yes, sir. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. अभी थोड़ा यहाँ पे देखो, यूनिट ऑफ वर्क. यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड यू कैन से इन विच द वर्क इज मेजर. जैसे कि हमें मालूम है, सपोज आई हैव टू मेजर द लेंथ, आई विल टेक द यूनिट एज मीटर और सेंटीमीटर. मुझे बराबर है ना? मुझे कोई भी Yes, मास sir. मेजर करना है तो मैं बोलूंगा किलोग्राम और ग्राम, बिकॉज दिस यूनिट्स आर नोन टू यू. जैसे कि मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो आई विल टेक डिग्री सेल्सियस. सो दिस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग आर कॉल्ड यूनिट. किसी भी क्वांटिटी के लिए मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं ना, उससे बोलते हैं हम यूनिट. हाँ, तो अभी देखते हैं वर्क का यूनिट. हमने देखा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ in the 8th standard you might have learned the force is expressed in the unit called Newton. फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है. फोर्स का यूनिट न्यूटन, यहाँ पे लिखा देखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन इंटू मीटर हो गया. यूनिट ऑफ वर्क बन गया न्यूटन इंटू मीटर. दिस न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल. ये न्यूटन इंटू मीटर को हम एक साइंटिस्ट का नाम देते हैं, जूल. सो अभी देखो, वर्क के लिए मैंने जूल लिख लिया, न्यूटन के लिए एन कैपिटल, पूरा नाम रहेगा तो एन स्मॉल रहेगा. यदि आपको पूरा नाम लिखना है न्यूटन तो एन स्मॉल, और सिंबल लिखना है तो एन कैपिटल. और डिस्प्ले मीटर के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, मीटर के लिए मैंने एम लिखा.
So what is the unit of work? बोलो joule. बोलो what is the unit of work? जूल. joule. joule का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर. So can I say 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter? Tell me what is 1 into 1? 1 into 1 क्या होता है? 1. 1. इसलिए therefore 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter. So how to define 1 joule? When we say that the work done is 1 joule, कभी हम बोल सकते हैं कि मैंने 1 जूल काम कर दिया. देखो यहाँ पे 1 जूल का डेफिनेशन. If a force of 1 Newton displaces an object through a meter to 1 meter in the direction of force, the amount of work done is called 1 joule. Means इसका मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आपने जो फोर्स लगाया है दैट इज 1 न्यूटन है. हाँ न्यूटन क्या अभी जरा छोड़ दो, इतना ध्यान मेरे को कि यदि मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन इतना फोर्स लगाया है और उसी फोर्स की वजह से द ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड थ्रू 1 मीटर, उसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर थ्रू हो गया है. एट दैट टाइम द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. गॉट इट? क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? How much force is exerted by you? Tell me. How much force is exerted by you? 1 आपने Newton. कितना फोर्स लगाया है? 1 Newton. 1 Newton. And because of that force, how much is the displacement of your object? 1 meter. 1 meter. At that time, the work done by you is said to be 1 joule. इसी सिचुएशन में जो आपने वर्क किया है ना, उससे बोलेंगे हम 1 joule of work. So this is the joule is the unit of work in SI system. SI एक सिस्टम है, उनमें से हमने इस सिस्टम में joule is the unit of work. Now the smaller of SI एक दूसरी एक सिस्टम है CGS. तो CGS सिस्टम में what is the unit of work? Let us check. ध्यान देखो यहाँ पे न्यूटन SI सिस्टम में एकक था फोर्स का. अभी फोर्स का स्मॉलर यूनिट है डाइन. यदि आपने कुछ सुना है तो फोर्स का स्मॉलर यूनिट है डाइन और मीटर का तो स्मॉलर आपको मालूम है क्या है? मीटर का स्मॉलर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. तो यूनिट ऑफ वर्क क्या बन गया? डाइन इंटू सेंटीमीटर. यूनिट ऑफ वर्क विल राइट द यूनिट ऑफ फोर्स डाइन, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर. सो डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अर्ग. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम? इट इज अर्ग. क्या बोलेंगे? अर्ग. अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर. देयरफॉर मैंने 1 अर्ग का डेफिनेशन किया है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. सो हाउ टू डिफाइन 1 अर्ग? हमें 1 अर्ग कैसे डिफाइन करना है? 1 अर्ग. हाँ बोलो अश्विनी जरा वर्क मैंने डिफाइन किया नहीं को बोलो जरा. Sir, can I say? हाँ बोलो. Sir, work is equal to dyne into centimeter. हाँ डिफाइन कर. डिफाइन. If a force of 1 dyne displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of the work done is 1 erg. So are you getting the meaning? Yes, sir. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो फोर्स लगाया है वो है 1 डाइन और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, then amount of work done by you is said to be 1 erg. Okay, how much is the force? 1 dyne. How much is the displacement? 1 centimeter. So how much is the work done? 1 erg. So take this screenshot. लीजिए screenshot. हो गया? हो गया? Sir, done. Now check the relationship between the joule and erg. अभी GA questions important है. The relationship between the joule and erg. ये पहले ध्यान में रखो. In the 8th standard you have learned that
1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. This is known fact. 1 न्यूटन का रिलेशन डाइन से क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 dyne. एंड 1 मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर के साथ ये तो आपको मालूम है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना? Yes, sir. Yes, 100 is written as 10 raised to 2. Abhi we know that work is equal to force into displacement. We have to write the unit of work is joule, unit of force is Newton, unit of displacement is meter. So I have put here 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Now 1 joule, Newton का smaller क्या होता है? What is the smaller of Newton? Dyne. 9. So how they are related? 1 joule is equal to 10 raised to 5 dyne. यहाँ पे रिलेशन मैंने दिखा है. 1 joule is equal, 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना. 100 का मतलब 10 raised to 2 बराबर है. Yes, sir. नाउ 10 raised to 5 into 10 raised to 2 कितना होता है? बोलो. 10 raised to 5 into 10 raised to 2 कितना होता है? 10 raised to 7. 10 raised to 7. और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? व्हाट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर? डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं. यहाँ पे देखा था, देखो डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं. डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? Erg. अर्ग. इसी तरह से वी गॉट 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग. 1 जूल का मतलब 1 जूल 10 और raised अर्ग to- में रिलेशनशिप. 1 जूल 10 raised to 7 अर्ग. टेक दिस स्क्रीनशॉट. Sir, taken. Take on. Solve the numericals. एक न्यूमेरिकल सर्कल लिखो. ये अभी आपको लिखना है. देखो कैलकुलेट टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg. ओके, ये जरा बाद में आएगा, थोड़ा अलग है. ये लीजिए सेकंड वाला लो. सेकंड वाला, पहले वाला बाद में. Praveen has applied the force of 100 Newton. So how much is the force? 100 How much newtons. is the force? 100 Newton. 100 न्यूटन. सो लिखो F is equal to 100 न्यूटन. लिखो कैपिटल F is equal to 100 न्यूटन. लिखा? Yes, sir. हाँ. At an angle of 60 degree लिखो. थीटा is equal to 60 degree. लिखो थीटा 60 degree. Theta 60 degree. लिखा. अभी आपको देखो यहाँ पे दिखा. देखो cos 60 is equal to 1/2 दिया है. लिखो नीचे, लिखो cos 60 is equal to 1/2. cos 60 की अभी आपका ऐप बंद हो जाएगा, बाद में आपको फिर से ज्वाइन करना है. ठीक है? Okay, sir. हाँ. Okay, sir. देखो cos 60 is equal to 1/2. cos 60 is equal to 1/2. और यहाँ पे दिया और कुछ दिया है 400 जूल. लिखो ये क्या है? 400 जूल क्या है? लिखो W is equal to 400 जूल. W is equal to 400 जूल. और टू फाइंड में लिखो डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? लिखो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. टू फाइंड S is equal to question mark. टू फाइंड S is equal to question mark. Use the formula W is equal to Fs cos theta. Use the formula use करो. A देखो